May I request all of you to please rise for the national anthem. Well, good evening, friends. A very, very warm welcome to all of you for this Smart Money Seminar 2022 organized by PIFA, that is the Pune Investment and Financial Ambassadors Association. My name is Harshvardhan Bhusari. I am one of the directors of PIFA and the immediate past president. I will be your host for today evening. Thank you for taking time out of your busy schedule and attending this seminar on a Friday evening. We will ensure that it is a time well invested. We are doing live streaming of the event on YouTube. I cordially welcome all our friends who are watching this live in different parts of the country and abroad. As per report by the technical team to me that we have investors logged in from USA, Gulf, Singapore and many European countries. Welcome to you all. Plus we have people from Punjab to Tamil Nadu and Gujarat to Assam. Well, Assam. Guwahati mein se hai kya koi? Some people are there in Guwahati, so I just checked with them. So who are watching this live webcast, and this really makes this event a very special one. We will have a small inauguration ceremony by lighting the lamp. I invite our distinguished speakers for the evening, Mr. J.P. Singh, CMO Mahindra Manulife Mutual Fund, Mr. K.R. Hariharan, Segment Head, Learning and Development, Axis Mutual Fund, Mr. Swaroop Mohanty, CEO of Mira Asset Mutual Fund, and the leadership team of PIFA. Please come on the dais to light the lamp. May I request the dignitaries to please take your seats.
Yeah, well, friends, we believe that investor awareness programs are the stepping stone for investor of any type, be it a seasoned one or be it a newcomer. These programs help any investor to become more mature. Remember, listening and adhering to wisdom from expert speakers has always to be the preferred choice. It helps investors to differentiate between the noise and the things that matter. It is because of these reasons that such investor awareness seminars are an essential need for the society, and we hope to create an informed investor through these programs. Now, just see how different quotes connect the dots. Now, Warren Buffett has said that risk comes from not knowing what you are doing. Risk comes from not knowing what you are doing. Whereas Robert Arnott, a famous American investor, has said that in investing, what is comfortable is rarely profitable. Okay, what is comfortable is rarely profitable. And Warren Buffett has again said that the most important investment you can make is in yourself. If you analyze these quotes, they simply mean that people sitting in this auditorium or watching on the YouTube are actually investing in themselves, isn't it? What do you feel? And it is PIFA's endeavor to bring to you the best of speakers to help you take smart decisions regarding your money matters with the help of these smart money seminars. Just to inform you about the event flow for today evening, we will begin with a welcome speech by President of PIFA, Beena Shetty. Our first speaker for the evening will be Mr. JP Singh, followed by Mr. KR Hariharan, and then Mr. Swaroop Mohanty. I'm sure that all of you will be getting some huge value addition by attending this seminar. So let's welcome PIFA President, Ms. Beena Shetty. She will be talking about PIFA. Yeah, over to you, Beena. A very good evening, everyone. As we commence today's program, I'm reminded of a very profound quote that I came across the other day. Our mutual funds and relationships have one thing in common. We must invest in them before we can withdraw. And what an apt investment of time and business relationship as we meet today, don't you think so? On behalf of the PIFA core team, I would like to extend a very warm welcome to our esteemed guest speakers, Mr. JP Singh, Mr. Swaroop Mohanty, and Mr. Hariharan, as well as our wonderful audience, our AMC friends, and our dear PIFA members. Established in July 2011, PIFA is an association of mutual fund distributors, CFPs, and registered investment advisors. The main objective of PIFA is to equip ourselves to face the challenges of this industry by understanding the problems faced by the MFT community and addressing them. Training being our main focus, we have been organizing various events as well as training programs by roping in asset management companies. The intention to form PIFA was, is, and will always be there for three prime objectives. The first and the foremost is to get the mutual fund distributors on a single platform to help with the solution for our various needs and queries, and also to upgrade our knowledge. In addition to keeping ourselves updated about regulatory changes and compliance, we regularly get an opportunity to meet and interact with all the leading fund managers, opportunity to meet and the CEOs and the top brass from the industry. Secondly, through PIFA, we seek to be in touch with all the AMCs to make them understand the need of the MFT community by communicating regularly on how the industry can grow hand in hand with the MF distributors. Different procedures are also simplified and made universally applicable and acceptable across all AMCs. And finally, we focus on investor education and awareness along with the efforts so as to reach the investor community at large. Over the last 5-6 years, PIFA has arranged more than 200 programs for members and their investors. Over the years, PIFA has arranged more than 5 open all IAPs, which have got an overwhelming response from the people of Pune. Last year, PIFA webcast all its IAPs live all over the world, which got more than 10,000 hits each time and a lot more after they were put on YouTube. PIFA has gone on air for all the IAPs. These are the milestones that we are proud of and extremely happy to share with you, as you have been a part of these milestones and our journey so far. We have a long way to go, but the beginning has been fantastic, and I'm sure the journey here on will also be equally exciting.
Collaboration is the key, and we need to continue to be guided by our mission each day. Let us make honest efforts to keep our knowledge updated and safeguard the interest of PIFA members, in addition to creating awareness and importance of wealth for all sections of society. Let us revisit our vision at PIFA to mark footprints of MFDs in the lives of common people at large and recommit to making PIFA a brand synonymous with ethical practices by multifolding and creating as much folios as can be under the galaxy of mutual funds, and to create an identity for Pune as a mutual fund city. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. Continuous learning is the minimum requirement for success in any field. At PIFA, the objective has always been collective growth of the fraternity, which will ultimately benefit the common investor. While learning from the various sessions on technical skills, life skills, practice management, and so on, taking the center stage and peer-to-peer learning is something which will go a long way for the betterment of the fraternity. The bonding which the PIFA members share with each other is special, and this is only due to the investment of time and trust that we have made amongst ourselves over the past few years. Like many people, the pandemic had confined us as well to limited resources, but the online sessions have been a true boon. While the learning continued, the in-person meetings were deeply missed. I'm happy to share a step towards peer-to-peer learning, our initiative, the PIFA Chaupal, which has been an attempt to showcase the PIFA members who can inspire, lead, influence, motivate, and awaken the fraternity. Appreciation can make a day, even change a life. Rewards and recognitions is one of the best ways to motivate each member. The PIFA Achievers Awards for the PIFA members with an AUM of rupees 100 crores and above is a sure testimony to this fact. We truly believe that this will help to motivate the PIFA members to strive for excellence. Further, it will help our members stand out and be an inspiration for others as well. PIFA is committed to spreading awareness amongst the investors. Informed investors and an updated investment and financial ambassador will go a long way in creating a prosperous world. We stay passionate about creating financial awareness and the importance of savings, as well as conversion of savings into investments to meet the various financial goals. While ensuring wealth creation and effective wealth management, we firmly believe it is our privilege to be there for our clients and their families. As our clients attempt to lead purposeful lives and harness their wealth for the good of their families and communities, we look forward to being their guide and mentor for all those who do not know how to go about managing their wealth and finances. क्लायंटची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी व संपत्ती मिळवण्यासाठी तसेच व्यवस्थापन करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार हा अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असतो. And we are those financial experts who can play a key role in our clients' lives. Teach not a man to fish, but to cook the fish he has caught. And that is exactly what we do for our clients. We help them do their investments in the right place so that it gives the best returns. And that's it from me. Thank you so much. Thank you, Beena. So let's move ahead. I'm also told that we are live on Insta as well as Facebook, right? Yeah. So please like the page of PIFA over there so that we will have maximum viewership, because we are learning into the old programs, especially of the smart money seminars, which we had regularly for past 5 years. Only the COVID break was there. But whatever we had thousands and thousands of views for that. So I want that you all can also benefit from them. Moving ahead, we are now moving on to the first session of today by Mr. JP Singh about Kal Aaj Aur Kal. Well, it is not about the Kapoor's movie. It is about the Indian economy. But before that, I will request Mr. Sandeep Bhushetty, past president and director of PIFA, to introduce Mr. JP Singh. Thank you, हर्षवर्धन. नमस्कार पुणेकर. आज आपण सगळेजण या ठिकाणी खूप इंटरेस्टिंग प्रोग्रामसाठी जमलेलो आहोत आणि PIFAचं आत्तापर्यंतचं हे वैशिष्ट्य ठरलेलं आहे की आपण इन पर्सन इव्हेंट आणि ऑनलाईन इव्हेंट्स मेगा स्केलवरती करतो. संपूर्ण भारतभर किंवा जगभर असणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांना या ठिकाणी आम्ही बोलवत असतो आणि या ज्ञानाचा कुंभ हा सगळ्या
गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोचवण्याचा हा आमचा प्रयत्न आहे. गेले 13 वर्ष पुण्यामध्ये पिफा ही संस्था काम करत आलेली आहे आणि हा पिफा स्मार्ट मनीचा जन्म गेल्या 7 वर्षापूर्वी झालेला आहे. तर पुष्प आपण आज सुरू करतो आहोत. आजच्या पहिल्या सेशनसाठी जे वक्ते या ठिकाणी आलेले आहेत, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर महिंद्रा मेन्यूलाइफ म्युच्युअल फंडाचे जितेंद्र पाल सिंग, आम्ही त्यांना प्रेमाने JP सर असं म्हणतो. JP सरांचा बाय प्रोफेशन ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटंट, परंतु अत्यंत अनुभवी आणि अत्यंत यशस्वी मॅनेजमेंटमधले व्यक्ती म्हणून यांचं संपूर्ण भारतामध्ये नाव आहे. या महिंद्रा मेन्यूलाइफ म्युच्युअल फंडाला जॉईन करण्याअगोदर त्यांनी मॉर्गन स्टॅनली, HSBC अशा मोठ्या मल्टीनॅशनल कंपन्यांमध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे. त्यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे सेल्स आणि डिस्ट्रीब्युशन याच्यावर त्यांची असणारी कमांड ही अत्यंत काय म्हणता येईल सराहनीय आहे आणि त्यांनी अनेक मोठे पदं या ठिकाणी घेतलेली आहेत. आज सरांना जो टॉपिक कवर करायचा आहे तो म्हणजे कल, आज और कल. भारताचा भविष्यकाळ, भारताचा इतिहास आणि आज भारतामध्ये काय परिस्थिती आहे ह्याचा आढावा सर घेणार आहेत. पूर्वी भारताला सोन्याची चिमणी किंवा सोन्याची चिडिया असं म्हटलं जायचं, सोन्याचा धूर इथे निघायचा, असा आपल्याला बॅकग्राऊंड असणारा भारत, आज असणारी भारतातली परिस्थिती आणि भविष्यातला भारत याची एक सुंदर सफर आज JP सर आपल्याला करून देणार आहेत. तर मी या ठिकाणी स्टेजवरती आमंत्रित करतो जितेंद्र पाल सिंग फ्रॉम महिंद्रा मेन्यूलाइफ म्युच्युअल फंड, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर आणि कमिंग फॉर कल, आज और कल. थँक्यू. So, good evening and thanks to PIFA for this opportunity. संदीप भाई जो बात कर रहे थे ना, एक्चुअली मेरे घर पे ही हुआ. मेरे बेटे पूछ रहे थे कल आ रहा, कल क्या है. मैंने बोला गूगल करो. गूगल के ऊपर पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर उसी के सामने सबसे पहले आया. तो बोले आप पिक्चर की बात करने जा रहे हो. तो एक्चुअली वही है, सच में बात वही करने जा रहे हैं टू सम एक्सटेंट. लेकिन ये भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है. तो ये स्लाइड जो है ये एक्चुअली 2018 में पीफा ने ही क्रिएट की थी, जब मेरे को इन्होंने भारत की कहानी, तो उसका एक एपिसोड था. तो यू कैन से ये वर्जन 2 है एक तरह से जो हम कवर कर रहे हैं. तो अभी आप जो देख रहे हो एक्चुअली आई एम टेकिंग यू बैक 2000 ईयर्स बैक. राइट, ये जो सोने की चिड़िया हमने स्कूल में कई बार हमने भाषण में बहुत बार सुना है. राइट, और एक गाना भी है अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा. राइट, तो वो वहाँ की हम बात कर रहे हैं. ये मैप आप देख रहे हो, ये सिर्फ एक तस्वीर है जो आपको बता रही है कि इतिहास क्या था, प्रॉस्पेरिटी क्या थी, समृद्धि क्या थी और हमारी विकास क्या था. और नंबर टर्म्स में मैं कुछ 2-3 आपको आंकड़े दिखाता हूँ उसके अंदर. एक तो ये आप देख रहे हो, ये कुछ 16वीं सदी की बात है. एंड दिस इज़ द थर्ड मुगल एम्परर ऑफ इन इंडिया. तो मुगल डायनेस्टी के टाइम में अगर आज भी आप गूगल करोगे रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड इन हिस्ट्री, राइट, इंडिया से इनका नाम आता है. उस टाइम कहते हैं ये वॉज अ बिलियनर. ऑफ कोर्स ये कोई आंकड़े तो होते नहीं थे कि रिकॉर्डेड आंकड़े इकोनॉमिक्स में सो ऑन, बट लिटरली 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड उस समय, जो पहले 1000-1500 की बात करते हैं, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इंडिया के थ्रू जाती थी. सो गोल्डन एरा, सोने की चिड़िया, आप किसी तरह भी आप वर्ड्स यूज़ करिए, उस टाइम की बातें हैं. राइट, एंड देन करीबन 1700-1800 सदी के बाद में, एंड दिस गोज टिल दी वी गॉट इंडिपेंडेंस, जब हमको स्वतंत्रता मिली 1947 में, उस समय प्लंडरिंग, इकोनॉमिक डी ग्रोथ, हर तरह से वो चीज़ जो ब्रिटिश एम्पायर को रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से इकोनॉमी चलेगी. एंड द नेचुरल ग्रोथ, एवरीथिंग टुक अ बैक स्ट्रीट. सो हिंदुस्तान के पास लिटरली इन ओरिजिनल टर्म्स सब कुछ था जो कि ग्रोथ के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए, सेल्फ डिपेंडेंस के लिए रिक्वायरमेंट थी. वी वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड. हर तरह के रिसोर्सेस, अपनी वेदर कंडीशंस, सॉइल कंडीशंस,
ग्रोथ, फूड ग्रेन्स, क्योंकि यही बेसिक प्रोडक्ट थे। तब तक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये हुआ नहीं था। एंड बिकॉज वी डिडंट, और मैं इसके बाद आपको कोई एक दो चीज़ें दिखाऊंगा। एंड और कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि हम ओरिजिनल थॉट्स, ओरिजिनल आइडियाज और स्पिरिचुअलिटी, दिस इज अ लैंड फ्रॉम वेयर इट वेंट आउट। एंड दिस, तो यहाँ पे हम आते हैं 1947, और जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये कल यानी कि येस्टरडे की बात कर रहा हूँ। क्योंकि समय का अभाव है तो थोड़ी समरी में, शॉर्ट में बात करूँगा। यू कैन ऑलवेज गो थ्रू डिटेल्स अगर आप, बट ये 1947, दिस इज़ आवर इंडिपेंडेंस, हमारी स्वतंत्रता। तो इंडिपेंडेंस हमको मिल गई, लेकिन क्या हम, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कई बार अपने आप से भी पूछता हूँ, क्या हम सच में स्वतंत्र हुए? ये सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी क्या? क्योंकि हम ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट होके हम स्वतंत्र से हो गए थे क्या? तो आर्थिक टर्म में मैं कभी नहीं मानता हूँ ये बात, क्योंकि फ्रॉम द गोल्डन एरा दैट वी टॉक अबाउट टू द लेवल जो कि हम डेवलपिंग नेशन, और डेवलपिंग नेशन तो हम आज तक कहलाए जाते हैं, एमर्जिंग नेशंस हो गए हैं, लेकिन डेवलपिंग नेशंस में हमारा नाम आने लग गया था, राइट। सो कुछ मैं आपको कुछ बैकग्राउंड देता हूँ। अब वर्ल्ड चेंज हो रहा था, हम चेंज नहीं हुए। तो ये हम दूसरों को तो दोष नहीं दे सकते अगर हमारी पॉलिसीज़ हैं। तो बैकग्राउंड ये है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, एंड लिटरली दुनिया तहस महस हो गई। जो ग्रोथ थी मतलब वो सारी रुक गई, एंड रीबिल्डिंग हो रही है अब। और रीबिल्डिंग इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? 19th सेंचुरी थ्रू आउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। एंड टू सम एक्सटेंट माई बिलीफ, अगर मैं हिस्ट्री थोड़ी पढ़ता हूँ, थोड़ी समझता हूँ, तो वो ये है कि 16th 17th सेंचुरी के बीच में, गोइंग अप टू 18th, वी लॉस्ट आउट बिकॉज वी डिड नॉट इनोवेट, वी डिड नॉट कीप अप आवर पेस with the changes in the world. We were very traditional old, and the new world in terms of arms, ammunition, new technology, उस टाइम की टेक्नोलॉजी took up. तो हमारे पास 1526 की जब हम कहानी सुनते हैं, 1525 और 1526 की, एंड मैं आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लेके जाता हूँ। लिटरली वो कहते हैं दो तोपों से हम हार गए, बाबर। अगर आप 1498, 1496 और 1498 की कहानी पढ़ोगे, वास्को दी गामा, तोपे जो थी वो शिप के ऊपर थी, एंड वी डिडंट नो हाउ टू फाइट। एंड नेचुरली उसके बाद अगर हम अधीन ही हो गए किसी की, तो हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही खत्म, हम वी नेवर टुक पार्ट इन इट। और यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में वी सॉ द फास्टेस्ट पेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। और फास्टेस्ट पेस किस हिसाब से? रीबिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्डिंग। नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर रीबिल्ड करने तो आपको फैक्ट्रीज चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, एवरी एस्पेक्ट दैट यू नीड टू बिल्ड अप। वर्ल्ड वहाँ पे अगले 40 साल वर्ल्ड ने ग्रोथ देखी। एक कंट्री जो कि ठीक से, अगर आपको याद हो, हम लोग बचपन में अपने स्कूल में ज्योग्राफी में एक मैप बनाते थे, मैप के अंदर एकदम राइट हैंड साइड ईस्ट में एक कंट्री है जिसको, जो कि आइलैंड है, विच इज़ नथिंग इन लैंड मास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहाँ पे न्यूक्लियर एटम बम गिराए गए थे, तो वो तो ख़त्म हो गई थी ना कंट्री एक तरह से। उसकी हिम्मत, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हर तरह ख़त्म हो गई थी। बट वो कंट्री जापान जो है अगले 30-40 सालों में वर्ल्ड ग्रोथ का पार्ट बनती है, एंड बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। आज भी वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड है, रुकी हुई है, थमी हुई है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बाय 1980s। नेचुरली यूएसए फर्स्ट है, तो यूएसए बिकेम द लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड जापान बिकेम सेकेंड, एंड सो ऑन। बट वेयर वॉज इंडिया? इंडिया हम यहीं पे हम थमे हुए थे। ये मेरे 4 डिकेड्स, लिटरली 2 जनरेशन हमारे लॉस्ट आउट है। मैं 3 बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ी सी एक आंकड़ा दूँ, जब हमारी स्वतंत्रता हुई तो उस समय एवरेज इंडियन लाइफ वॉज अबाउट 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स में लिटरली 2 जनरेशन्स खत्म हो जाती हैं हमारी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग लाइफ। अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, अगर कोई पढ़ाई लिखाई कर गया वो माइग्रेट कर जाएगा इंडिया से। अगर कोई डॉक्टर बन गया, कोई साइंटिस्ट बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, दे विल गो टू इंडिया। अपॉर्चुनिटी बहुत बेसिक अपॉर्चुनिटीज़ थी, यहाँ पे ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। यू नो, देयर वाज अ स्पेशल वर्ड फॉर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ कॉल्ड हिंदू ग्रोथ रेट। कोटा सिस्टम, ट्रेड सिस्टम, लाइसेंस सिस्टम, एवरीथिंग कंट्रोल्ड। वी नेवर टुक अ स्टैंड कि हमको कैपिटलिस्ट बनना है या सोशलिस्ट बनना है। सो आवर इकोनॉमी इज ऑलवेज कॉल्ड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। एंड
ये इसके बाद क्या हुआ, ये अभी भी मैं आपको कल आपको बता रहा हूँ, समय का अभाव में थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. दिस इज व्हाट कल इज, दिस इज येस्टरडे. सो इन 1991 एक मेजर क्राइसिस होता है. आज आप जिस दुनिया में रह रहे हो, राइट, तो हम लोग उसको वूका वर्ल्ड भी बोलते हैं, वॉलेटाइल, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस, राइट. तो इस वर्ल्ड में हम इतनी वॉलेटिलिटी देख रहे हैं ऑल अराउंड. कभी श्रीलंका का क्राइसिस, कभी कोई और कंट्री का क्राइसिस रेगुलर हम सुन रहे हैं. 1991 इज द हिस्ट्री फॉर इंडियन क्राइसिस. सो 2 साल पहले, इसके पहले कोalition गवर्नमेंट, मे बी वन ऑफ द फर्स्ट वंस, 3-4 प्राइम मिनिस्टर, और एक प्राइम मिनिस्टर की बदनसीबी कि उसके टाइम, दिस आई थिंक दिस इज 1991 मार्च, फरवरी मार्च, बजट पास नहीं हुआ था. और बजट पास ना होने के कारण you had no finances to help yourself. Fiscal deficit, you don't have money, you don't have forex to import your essentials. आज सुन रहे हो ना, वर्ल्ड में फॉरेक्स खत्म हो गया, लोगों के पास तेल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं. कुछ कंट्रीज IMF पड़े हैं, राइट. हमारे पड़ोसी देश IMF जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के जा रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं. इंडिया 1991 क्राइसिस. बदनसीबी चंद्रशेखर जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, क्योंकि उनको देश का सोना गिरवी रख के फॉरेन रिजर्व्स लेकर उनको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ी. तो ऑफ कोर्स थोड़ी देर के बाद इलेक्शंस होते हैं. और 1991 की क्राइसिस वो होता है ना कि लिटरली मैं कई बार कहता हूँ कि व्हेन योर बैक इज टू द वॉल, जब आपके कोई ऑप्शन नहीं बचती है, देन यू मे टेंड टू गिव योर बेस्ट, राइट. तो थोड़ी हिस्ट्री है, हाइंडसाइड वाइज मेरे बेनिफिट है, मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूँ. बट दिस इज व्हाट हैपेंड 1991. अगर मेरे को हिस्ट्री लिखनी है तो मैं कहूँगा हमारी आर्थिक हिस्ट्री के इतिहास में ये मेरी आर्थिक स्वतंत्रता दिवस है. 1991 जुलाई. ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस टाइम के वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपना प्रेजेंट किया अपना बजट, प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव. एंड दिस इज व्हाट चेंज्ड इंडिया. दिस इज व्हाट कल, आज और कल के अंदर, अब तक मैंने कल कवर किया था, ये आज कवर कर रहा हूँ. 30 साल का आज, ये आज मतलब आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये चेंज है, राइट. यही साल थे जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, राइट. कुछ पिक्चरें भी बनी है इसके ऊपर, कुछ पिक्चरों में ये यूज़ किया ये समय. लेकिन लिटरली व्हाट हैपेंड इन इकोनॉमिक टर्म्स. आज जो हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, प्राइवेट म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, हम नहीं थे. कोई प्राइवेट म्यूचुअल फंड इंडिया में नहीं था, कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं थी प्राइवेट. इट वॉज ओनली वन इंश्योरेंस कंपनी. दे वर PSU म्यूचुअल फंड्स. प्राइवेट बैंक्स नहीं थे इंडिया में, सिलेक्टिव कुछ थे लेकिन कुछ लाइसेंसेस नहीं मिलते थे. टेलीकॉम ओपनिंग, बूम. कैन यू इमेजिन इफ दिस डिड नॉट हैपन. आज हम जो आज ज़िंदगी जी रहे हैं, जो हम थोड़ी आगे बात और करूँगा, ये लेवल पे हम बात कर रहे होते क्या, टेक्नोलॉजी, वुड वी हैव बीन विद द वर्ल्ड. लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें लास्ट में आपको सारी समरी मिलेंगी. ध्यान रखिएगा, वी स्टिल मिस्ड द बूम पीरियड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वर्ल्ड. वी डिड नॉट टेक पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग बूम ऑफ द वर्ल्ड. अ कंट्री लाइक जापान बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री in terms of economic power in world. बट कुछ हुआ. कुछ स्लाइड्स मैं नहीं दिखाऊंगा, टाइम कम है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में रखेंगे. ये देखिए, ये 1 नंबर जो है ना, ये नंबर 1 नहीं हम बने. वी एंटर्ड द $1 ट्रिलियन क्लब. 1991 वी वर अबाउट $300 बिलियन, 250-300 बिलियन डॉलर इकोनॉमी. अगले 7-8-10 साल बस वही आधा, एक कदम आगे आधा पीछे, 2 आगे 1 पीछे, आगे बढ़ते गिरते संभलते 10 साल निकलते, 11 साल निकलते हैं. इस सेंचुरी में हम 21वीं सदी में हम कदम रखते हैं. और हमारे इस समय हमारे प्रधानमंत्री है अटल बिहारी वाजपेयी. ये मेरी श्रद्धांजलि है उनको. मैं हरदम कहता हूँ, आज का इंफ्रास्ट्रक्चर इफ देयर अ फाउंडेशन किसने ले किया है तो बहुत लोगों को क्रेडिट मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय इनको जाएगा. स्वर्ण गोल्डन क्वाड्रेंगल या स्वर्ण चतुर्भुज योजना, कॉरिडोर, उनका ड्रीम प्लान कि दिल्ली मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट इन सम टर्म्स मेजर सिटीज़ को लिंक करना. याद रखिएगा, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी फाउंडेशन है, आपकी धरोहर है जिसके ऊपर आप ग्रोथ कर सकते हो. वरना और फाउंडेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, आज तो डिजिटल भी हो गया है. ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो हम शहर, अर्ध शहर और गांव क्षेत्र लिंक नहीं होते. हम जो जीवन जी रहे थे 1980-90 में, वी आर लिविंग अ हाई इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन हाई. और याद रखिएगा, जब इन्फ्लेशन, महंगाई, आज भी हम सुन रहे हैं महंगाई हाई है, जब महंगाई हाई होगी आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती. आपका पैसा, आपकी इनकम सिर्फ महंगाई में जाएगी.
महंगे सामान खरीदने में जाएगी, यू विल बी लिविंग योर बेसिक लाइफ, आप अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगे। और जितने यू गो डाउन द कर्व ऑन इनकम, उनको और दिक्कत। $1 ट्रिलियन मार्केट बूम, थोड़ा लिंक रखिएगा, मैं सिर्फ इकोनॉमी नहीं बता रहा हूँ, हम कैपिटल मार्केट वाले हैं, हम स्टॉक मार्केट भी हम इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। लिंक देखिए, जीडीपी डज वेल, अर्थव्यवस्था अच्छी करती है, कैपिटल मार्केट अच्छी करती है, स्टॉक मार्केट अच्छी करती है। स्टॉक मार्केट अच्छी इसलिए नहीं करेगी, वो अच्छी करती है और रिजल्ट है, आप अच्छे रिजल्ट लाओगे कंपनियों के, कॉर्पोरेट्स के ग्रोथ के, एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में, ऑटोमेटिकली वो उसको रिफ्लेक्ट करेगी। इस समय अगर मेरे को ठीक से याद है, इस 4.5 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था जो करीबन $400-500 बिलियन की थी, 1 ट्रिलियन हो जाती है, हम टॉप 20 वर्ल्ड में आ जाते हैं। एंड एक्चुअली ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 1991 तक ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था। 2 ट्रिलियन 10 ईयर्स मोर, 2007-8 में हम 1 ट्रिलियन होते हैं। देखिए जीडीपी डबल हो गई। यहाँ पकड़िएगा, मेरे सारे स्लाइड लिंक्ड हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा हूँ, ये लर्निंग भी है हमारे लिए। $2 ट्रिलियन, वी आर टेकिंग पार्ट इन एवरीथिंग। देखिए नई चीज, टेक्नोलॉजी हैज कम अप, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, हर तरह से सर्विसेज। अभी इसको समरी देखिए, जीडीपी टर्म्स इन बार ग्राफ। इन 1991 ग्रीन आप देख रहे हो, लिबरलाइजेशन 1991, रेड $500 ट्रिलियन, नेक्स्ट 10 ईयर्स स्लो ग्रोथ लेकिन हो रही है। येलो डॉट $1 ट्रिलियन, नेक्स्ट 5 ईयर्स ओनली, नेक्स्ट 10 ईयर्स ग्लोबल क्राइसिस होता है, लेमन क्राइसिस कई बार रेफर करते हैं, प्रोग्रेस स्लो होती है लेकिन ग्रोथ हो रही है, स्लो सही हो रही है, यू आर रीच $2 ट्रिलियन। और देखिए हिस्ट्री, मतलब आंकड़े ऐसे होते हैं कि 1947 से 2007 मेरे को लगते हैं 60 साल 1 ट्रिलियन पहुंचने के लिए, और मेरे को 10 लगते हैं 10 साल 1 और ट्रिलियन ऐड करने के लिए। अब आप इफेक्टिवनेस देखिए, अपनी ग्रोथ की मेगा ग्रोथ देखिए कितनी बड़ी है यहाँ पे। अब इसको लिंक करते हैं, ये तो जीडीपी, ये अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, हिंदुस्तान की ग्रोथ की बात हो रही है। इसको लिंक करिए स्टॉक मार्केट में। देखिए स्टॉक मार्केट, अगर आप पीछे जाओ, अगर आप लिंक पिछली स्लाइड और इस स्लाइड को लिंक करिए तो सेम ग्रोथ देखिए किस तरह से ग्रोथ हो रही है। आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है। ग्रोथ का ट्रेंड देखिए यहाँ पे, जब 1 ट्रिलियन था 2007, 20,000 सेंसेक्स हुआ था। डबल होती है जीडीपी, सेंसेक्स करीबन, मतलब मैं आपको, आप डायरेक्शन पकड़िए, ये तो कोई 1:1 नहीं है कि ऐसा ही होना है। उसके अंदर कुछ स्टॉक्स मल्टी बैगर बनेंगे, नई सेक्टर आते हैं, आईटी कंपनी सेक्टर आती है, टेलीकॉम, वो न्यू एज कंपनीज हु डज इवन बेटर। तो इट्स अ मिक्स बैग, बट बात जो पकड़नी है वो ये है, जैसी आपकी इकोनॉमी होगी वैसा ही ट्रेंड आपकी स्टॉक मार्केट दिखाएगी। राइट, ये उस समय की रिटर्न चार्ट्स हैं, करीबन 16% आपने हरदम सुना होगा, ऑन अ ब्रॉडर बेसिस 15-18% उस रेंज में, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, उस रेंज में रिटर्न देती है अपनी स्टॉक मार्केट। और मैं आप सबको बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 10 दिन पहले आंकड़े आए हैं हमारे जीडीपी के 236 लाख करोड़, यानी कि $3 ट्रिलियन ऑफिशियली वी हैव क्रॉस्ड इट। डॉलर मूव करता है, ऊपर नीचे हो गए, $3 ट्रिलियन। पिछले 20 सालों में आप 300-350 बिलियन से 10 गुना 10x ग्रोथ कर चुके हो। दिस इज द सेम कंट्री जो कि कंट्री नोन ओनली फॉर ताजमहल, ओनली फॉर राजा महाराजा, सरपंच, सपेरे। सोने की चिड़िया तो भूल चुके होंगे तब तक हम इतने निराश हो चुके होंगे, कभी ग्रोथ की हमने संभावना भी हमने छोड़ दी होगी। बेसिक फूड की, मेरे मदर हरदम कहा करते थे 2 रोटी खानी है उसका, राइट। सो फ्रॉम अ लेवल, एक टाइम 1960s में जब हम फूड सिक्योरिटी ड्रॉट्स में कहा जाता था कि ये देश जो है ये अनपढ़ों का देश बन जाएगा, 50% दुनिया की अनपढ़ की लोग यहाँ रहेंगे इस देश में, भारतवर्ष में। लोग भूखमरी से मरेंगे क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और आपकी फूड सप्लाई नहीं आ रही है। वहाँ से कंट्री, दुनिया में भूखमरी की इशू हो रही होगी, इंडिया में फूड सिक्योरिटी है, आपके यहाँ वीट शॉर्ट नहीं है, आपके पास बफर स्टॉक पड़ा हुआ। अगर आपको 100 मिलियन टन की वीट की ज़रूरत है तो आपके पास 115-120 मिलियन टन पड़ा हुआ है यहाँ पे। फ्रॉम दैट, और याद, जो मैंने बात की ये बेसिक रोटी की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ। कमाई जितनी भी कर लीजिए, आपको अल्टीमेटली रोटी खानी है, रोटी चावल जो भी आप टर्न ले लीजिए। सो
अब ये एडेड ग्राफ है, मैं देखिए पकड़िए बात वापस, 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन, 50% ग्रोथ ऑफ स्टॉक ऑफ जीडीपी। सेंसेक्स 40 से 60 जाता है। सेंसेक्स मैं वापस बोल रहा हूँ, इसमें उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ट्रेंड लाइंस विल बी इन डायरेक्शन ऑफ योर ग्रोथ ऑफ योर इकोनॉमी। अल्टीमेटली ट्रेंड लाइंस वही होती हैं। देखिए बहुत सारे इवेंट होते हैं मार्केट में, पॉलिटिकल इवेंट, सोशल इवेंट, जियो पॉलिटिकल इवेंट बहुत सारे होते हैं और हो भी रहे हैं हमारे आसपास, बट ट्रेंड लाइंस पकड़िए। सो एक तरह से ये हमारी जीवनी है, मेरी लाइफ है। लाइक मैं उस जनरेशन से हूँ जो आटे की रोटी, ज्वार बाजरे की रोटी खाते थे, और नेक्स्ट जनरेशन देखिए क्या, क्योंकि इसके बाद कुछ स्लाइड्स आएंगे लिंक, वो डोमिनो पिज़्ज़ास और वो ब्रेड, मतलब कई बार मेरे को ब्रेड देखता हूँ, वो छोटी सी ब्रेड की पीसेस आते हैं 100-150 रुपए के, और मैं सोचता हूँ मेरे महीने की ब्रेड की जो प्राइसेस हैं उतनी हैं। हमारी सोच पुराने, हमारे इसी जनरेशन की सोच वहीं अटकी हुई है, लेकिन हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, कंजम्पशन ग्रो कर रही है। अगली जनरेशन जो फास्ट ट्रैक होगी, मैं अगली इसके बाद बात करूँगा। मतलब मेरे को अभी भी याद है, हम कोई हाई स्कूल में पढ़ता था, मम्मी बोला था कि टाइपराइटर सीख ले चलाना, एक कहीं नौकरी मिल जाएगी। अब तो शायद टाइपराइटर तो क्या, हमको लैपटॉप भी चलाना नहीं जरूरत है, वो तो टैब्स वैब सब कुछ मूवमेंट्स लाइक, मतलब बहुत जल्दी आपको ऐसा होगा कि रेटिना से आप शायद मूव कर पाओ। फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी हो सकता है कि आप सोच लो और वही दिखाई दे, आपके दिमाग में कुछ फिट कर दे, एआई सेमीकंडक्टर ऐसा बन जाए कोई। राइट, 1970 में मेरे फादर मेरे को लेके गए तो 1970s 80s में स्टार वॉर्स मूवी देखने, फिर टेलीविजन के ऊपर स्टार ट्रेक आने लग गया। मतलब कभी सोचा था, वही पिक्चरें बन के आज एवेंजर्स का नाम में आ रही हैं, लेकिन वो मतलब उड़न तस्करी ये सब तो बन गई है, हमको एरोप्लेन ये सब तो बहुत दूर की बात है, ड्रोन्स बनने लग गए हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इट इज़ ग्रोथ। अगर कोई आपके आसपास कोई कहे ना हिंदुस्तान ग्रो नहीं किया है, मेरे को कुछ मिला नहीं, उसको बोल दो क्या कपड़े पहने हुए थे हम लोग। कपड़े दिवाली में एक कपड़ा मिलना था, मेरे को तो याद है बड़े भाई के कपड़े कट के मिलते थे, उसमें खुश होता था। मेरे को पता था अगले साल क्या मिलने वाला है, क्योंकि मेरा भाई पहन रहा है इस साल। दे दो आज के बच्चे के, वो आपको बताएगा कौन से ज़ारा और कौन से मतलब वैन हुटन, आप लू विटन कौन सा पहनना है। दैट इज़ वॉट, दिस इज़ वॉट वी आर चेंजिंग। मतलब साइकिल बड़ी बात थी, रेडियो अमीर आदमी के घर में था, और आज बोलो वो रेडियो तो क्या, ईयरपॉड्स आ गए, पता नहीं को 10-20 हज़ार 30 हज़ार के आपको कैसे यूज़ करने, क्या करने हैं। बोले मज़े की बात को सेकंड वाली बात है ना, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, मेरे घर पे फ़ोन अगर था तो पड़ोसी को पता होता था एसटीडी चल रही है। अब दिक्कत ये है कि मेरी बगल में मेरी वाइफ बैठी होती है, वो मेरी सास के साथ अपनी बहन का बात कर रही होती है, और थोड़ी देर में बोलेगी आप मेरे से बात क्यों कर रहे हो, देखा नहीं मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, बगल में बैठ के फ़ोन पे बात करी, आई डोंट नो शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। इतनी साइलेंस लाइफ हो गई है, लेकिन बात तो फिर कनेक्टेड, देखिए वो कनेक्शन है, और कहाँ वो पड़ोसी को पता है कि एसटीडी चल रही है, कहाँ बात कर रहे हैं वो, क्या कन्वर्सेशन हो रही है। दिस इज वॉट द वर्ल्ड हैज चेंज एंड दिस हैज चेंज, एंड लेट मी टेल यू एवरी कंट्री हैज नॉट चेंज। ये भारतवर्ष इंडिया में हुआ है ये चेंज। अब आते हैं कल आज, मैंने पिछले 30 पहले आपको कल बताया, आज जो है 30 सालों का आज बताया, प्रेजेंट 1991 से लेके करीबन आज तक का। अब मैं थोड़े से बोरो कर रहा हूँ रेमंड डैलियो, ही वाज हेड फंड मैनेजर, ही वाज को CIO एट वन ऑफ द लार्जेस्ट हेड फंड मैनेजर, ऑथर। इसकी किताब है द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो देखिए उसके अंदर मैं 2-3 आपको स्लाइड मैं यूज़ कर रहा हूँ, उनको बोरो कर रहा हूँ समझाने के लिए कि वो थोड़ी हिस्ट्री में जाते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर इकोनॉमिक सेंस में, वर्ल्ड ऑर्डर मतलब आप कितने स्ट्रॉन्ग, कितने बलवान बन रहे हो एज अ कंट्री, देश के हिसाब से, एक अंपायर के हिसाब से, एक कैसे आप। तो डच एम्पायर वॉज द वन नोन एज 1600 के आसपास, नोन एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ग्रोइंग प्रोग्रेसिव। वर्ल्ड को इक्विटी जो वर्ड है ना, इक्विटी कल्चर जो वर्ड है, वो डच ने दिया है। तो वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी, जिसके अंदर की समूह पब्लिक पैसा शेयर होल्डिंग जहाँ से आती है। सो देर इज ऑलवेज अ राइज एंड मे बी अ फॉल और मे बी नॉट अ फॉल, बट राइज हुई डच की। डच से टेक ओवर किया ब्रिटिश ने। तो देर आर एरास, ब्रिटिश का बहुत लंबा रहा राज, हम लोग को सब पता है। वो कहते हैं कि ब्रिटिश राज में कभी भी सोना मतलब अपने सूरज ढलता ही नहीं था, ईस्ट से लेके वेस्ट तक कहीं ना कहीं सूरज उगता रहता था वहाँ पे। एंड देन यूएसए 19th सेंचुरी से मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तो पक्का राइट गॉडफादर ऑफ द वर्ल्ड बने हुए हैं। एंड देन लास्ट 40 ईयर्स चाइना। जो मैंने आपको पहली 3 स्लाइड्स दिखाई, उसके अंदर मैंने आपको दिखाई नहीं, लेकिन सोने की चिड़िया जब हिंदुस्तान था तो कहते हैं दुनिया की 50-60%
दुनिया की ट्रेड यानी कि लिटरली अर्थव्यवस्था दो देशों में थी समय, एक हिंदुस्तान और दूसरी चाइना। वो चाइना के अपराइजिंग देखिए 1980s में, क्यों? क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म्स किए। हिंदुस्तान ने जो 1991 में रिफॉर्म्स की धरोहर रखी, इन्होंने करीबन 1980, 10-12 साल हिंदुस्तान से पहले। हाँ, उनकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अलग है, उनकी 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 कुछ चीज़ें हमसे 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 बेहतर रही होंगी, ज़्यादा कंट्रोल रही होंगी, लेकिन रे डैलियो कह रहे हैं कि इस तरह से ओवर पीरियड ऑफ टाइम एम्पायर्स इकोनॉमिकली एंड नेचुरल, इकोनॉमिकली तो प्रॉस्पेरिटी, आपकी पॉलिटिकली, सोशली हर तरह से ग्रो करती हैं। तो उन्होंने इसको थोड़ा सा, अगली 2 स्लाइड यूज़ करूंगा मैं, ये वाली और एक और, थोड़ा सा उन्होंने डिटेल में भी लिखा है रे डैलियो ने अपनी किताब के अंदर, अपने वीडियो के अंदर। आपको अगर आप गूगल करो, अगर यूट्यूब पे जाओगे तो इनके वीडियो भी है कुछ। तो हमारी कंसंट्रेशन जो है वो इसके शुरू के पार्ट के राइस पे है हमारी कंसंट्रेशन। तो राइस के अंदर जनरली कहा जाता है कि बेसिकली शांति, समृद्धि और उत्पादकता, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ये बेस है आपकी ग्रोथ का। सबसे पहले शांति। द लॉन्गर यू आर पीस इन योर एम्पायर, द मोर यू विल टेक रिस्क, द मोर यू विल एंटरप्रेन्योर, मोर ग्रोथ यू कैन प्रोड्यूस। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक्चुअली वी मे हैव हैड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीस प्रॉस्पेरिटी एरियाज। हाँ, इधर उधर वॉर्स हुई हैं, लेकिन जनरली लॉन्गेस्ट। इसके अंदर इनिशियली तो क्या होता है कि आप कमाई कर रहे हो, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, इनोवेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी, आईटी में आज के वर्ड्स कुछ यूज़ कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ वेयर जो राइज बिकम, जहाँ पर ग्रोथ हो रही है। सेम स्लाइड उन्होंने डिटेल में दिया, और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड जो 8 पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइज की बात हो रही है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, नेतृत्वता, इन्वेंटिवनेस, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, चेंजेस, एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग कल्चर, रिसोर्स एलोकेशन, स्ट्रॉन्ग इनकम ग्रोथ। 8वां पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग मार्केट, फाइनेंशियल सेंटर। आपकी बाय द वे स्टॉक मार्केट, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट इज इन द टॉप 6 स्टॉक मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक 6ठे नंबर पे आज। $3 ट्रिलियन की स्टॉक मार्केट है हमारी, उसकी वैल्यू। दिस इज वॉट इज बेस फॉर राइस। इस पॉइंट्स को पकड़े रखिएगा, लास्ट में इसको क्लोज करना है हमने। ये हम जो बात कर रहे हैं अभी, मैं आपके सामने पॉइंट्स रख रहा हूँ, ऑफ कोर्स सोचने के लिए, थॉट के लिए कि क्या फ्यूचर, कल, आज और कल का कल, टुमारो कैसा हो सकता है, क्या हमारा है, हम उसके पार्ट रहेंगे। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड देता हूँ। जब यूएसए का राइज हुआ, मैंने दिखाया राइज ऑफ यूएसए का राइज हुआ बेस्ड ऑन कंजम्पशन, वो बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग। वापस पॉइंट पे याद है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में भागीदार नहीं थे उस समय, वी वर नोबडी इन द वर्ल्ड। चाइना का जब ग्रोथ हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम रिफॉर्म्स इन फार्मलैंड्स, went to down the curve in terms of scale, introducing lately innovativeness, high quality products, scale, everything came in, productivity अब हर तरह से लीजिए। इंडिया के पास जो पॉइंट्स मिसिंग थे बीच में, मैन्युफैक्चरिंग के थे। हमने एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो पहले 1600 साल की मैंने बात की, दुनिया को बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी फूड की, वो एग्रीकल्चर थी। अगर हमारी एग्रीकल्चर स्ट्रांग थी, वी वर लार्ज इन द वर्ल्ड मार्केट। एंड इन ट्रेड के अंदर स्पाइसेस, टी, जो हम बात सुनते हैं, हम एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से, चाइना एक्सपोर्ट करता था, तो नेचुरली वर्ल्ड ट्रेड के अंदर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। मैन्युफैक्चरिंग हमने मिस कर दी। तो ओपन क्वेश्चन है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हम आएंगे? बट लास्ट 20-25 ईयर्स, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, IT, वी डिड नॉट मिस। आज हमारी जो GDP है उसके अंदर करीबन 17-18% प्रतिशत जो भाग है वो एग्रीकल्चर का है, 55-60 के आसपास सर्विसेज। मैन्युफैक्चरिंग इज लो इन दैट, है लेकिन लो है। कुछ फटाफट कुछ नंबर देख लेते हैं। क्यों? ये याद रखिएगा, कल की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है। टुमारो आज, जो आज का पल है और कल में जाने वाला है, उसके अंदर वी आर मीडियन एज। तो जितनी यंग पॉपुलेशन होगी, आज करीबन हम 28 साल की पॉपुलेशन के आसपास, 29 साल की पॉपुलेशन आज करीबन, जितनी यंग पॉपुलेशन होगी उतनी स्पेंडिंग पॉपुलेशन होगी, उतनी अब इनकम होगी, उतनी एजुकेशन। इट इज़ मोर टू डू विद स्पेंडिंग प्रोपेंसिटी, कंजम्पशन, इनकम, एवरी एस्पेक्ट। और कुछ चीज़ें हम भर चुके हैं, एजुकेशन, कल्चर, लीडरशिप, राइट, वी आर ऑलरेडी फीलिंग दैट। मेरे को अभी भी याद है, कई बार बोलने में, अब तो मैं थोड़े बोलने में हंसी ले लेता हूँ, कई शर्म आती होगी कभी। मैं जब CA कर रहा था तो कुछ पैसों की ज़रूरत थी ट्यूशन के लिए, पैसे रेडी नहीं थे, हज़ारों में। हाँ, उस टाइम हज़ारों की वैल्यू आज ज़्यादा होगी। मेरा छोटा बेटा लंदन जा रहा पढ़ने, तो अभी घर में लड़ाई चल रही है, मेरे फादर पैसे देंगे, लाखों में होने वाले, या मैं दूंगा, राइट।
दिस इज द चेंज व्हाट इंडिया हैपेंड. लुक अराउंड योर सेल्फ एंड सी हाउ मेनी पीपल, चाहे इंडिया में पढ़ रहे हैं, IT कर रहे हैं, डॉक्टर जो भी कर रहे हैं, या बाहर जा रहे हैं. सो इट इज इन्वेस्टमेंट इन दैट एजुकेशन. एंड ऑटोमेटिकली आप कितनी स्ट्रॉन्ग कल्चर, कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी खड़ी कर सकते हो उस हिसाब से. दिस इज द यंग पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट. एक्सपेंडिंग मिडिल क्लास. वेस्ट वर्ल्ड में मिडिल क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं क्लियर कर दूं. सिर्फ किताब रिच डैड पुअर डैड की है, मिडिल क्लास डैड की कोई नहीं है. और इंडिया की एक प्रॉब्लम है कि अगर हम मिडिल क्लास से हाई भी आगे तो अपने आप को मिडिल क्लास ही कहलाते हैं. आप मिलियनर बन जाओगे, माइंडसेट मेरे जैसे लोगों का वही मिडिल क्लास का रहेगा, खर्चे नहीं कर पाएंगे. तो 5-10 साल में हमारे बच्चे टेक ओवर कर जाएंगे, तो बी श्योर स्पेंडिंग होने वाली है. आपने जो पैसा कमाया और वो जो पैसा कमाने वाले हैं, सारी स्पेंडिंग होने वाली है. अगर आपने कम स्पेंडिंग की, वो एवरेज आउट कर देंगे. मैं बहुत क्लियर उसके अंदर, राइट. ये पर कैपिटा इनकम है, हम करीबन 2000 हैं. 20 साल पहले जब मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, हम 500-400 पर कैपिटा इनकम थे डॉलर टर्म्स में. 5 गुना 6 गुना बढ़ चुके हैं. यहाँ से 2/3 की और बात हो रही है अगले 5-6 सालों में. मेन बात क्या, पैटर्न पकड़ने, डायरेक्शन पकड़ने, ग्रोथ है कि नहीं, आपकी इनकम बढ़ेगी कि नहीं. जितनी इनकम बढ़ेगी नेचुरली कुछ खर्चे बढ़ेंगे. एंड आई थिंक वी आर मूव्ड फ्रॉम बेसिक लिविंग बेसिक लाइफ टू मे बी कंफर्ट और लग्जरी की तरफ जा रहे हैं, जो हम 3 पार्ट बोलते हैं, राइट. तो ऑटोमेटिकली लाइफ स्टाइल स्पेंडिंग भी बढ़ गई है उसके अंदर, हर तरह से उस तरफ बढ़ गई है. एक पासपोर्ट घर में, पासपोर्ट ट्रैवल नहीं, पासपोर्ट होनी बड़ी बात थी. और अभी कौन क्या कहाँ कम घूम के आया था, कोई बात ही नहीं है इसके अंदर. सो एक समरी न्यू एज इंडिया की. इंडिया भारत, आप मतलब देखिए मैंने भारत का वर्ड इंडिया कर दिया अभी, अब थोड़े से इंग्लिश हम हो गए, राइट. सो एजुकेशन, कंजम्पशन मैंने कवर कर लिया है. मैन्युफैक्चरिंग अब भी जारी है और बहुत कुछ बाकी अगली स्लाइड में आएगा. ग्रोथ नेचुरली. लेकिन लास्ट इंपॉर्टेंट है डिजिटल इंडिया. डू यू नो दैट द लार्जेस्ट नॉन डिजिटल पेमेंट इन द वर्ल्ड, डिजिटल पेमेंट्स है, बैंक पेमेंट्स जो हम बात करते हैं, इस इंडिया. इट इज़ मोर देन चाइना और USA तो आसपास भी नहीं है. नॉन फिजिकल पेमेंट्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज इंडिया. कई साल पहले आई थिंक अगर मेरे को ठीक से याद है, पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी और एक मिनिस्टर, बहुत मतलब उस टाइम पुराने फाइनेंस मिनिस्टर ने बात बोली थी कि आप टेक्नोलॉजी करने जा रहे हो, आप मोबाइल फोन्स पे बोल रहे पेमेंट होगी, यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस डिजिटल टेक्नोलॉजी. गरीब आदमी यूज़ कैसे करेगा? मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, अमीर आदमी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा है. इट इज़ डाउन द लाइन वो यूजिंग. जब मैं डोसा खाने जाता हूं, वो बोलता है सर इसके ऊपर पेमेंट कर दो. तो मेरे को पता वो QR कोड ऊपर पेमेंट करने बोल रहा है. मैं उसको बोलता हूँ मैं समझता नहीं हूँ, कैश दूंगा. बोला नहीं सर इसके ऊपर पेमेंट कर दो. उसको वर्ड नहीं पता है. एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए हिंदुस्तानियों के बारे में, हम अनपढ़ होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन सूझबूझ बहुत है. कॉमन सेंस की कहीं कमी नहीं है. हम जो मर्जी कह लें, तो वो कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी पकड़ ली. हजारों लाखों ट्रक चलते हैं इंडिया में, कमर्शियल व्हीकल्स. फास्ट टैग इंट्रोड्यूस होने के पहले कितनी किचकिच हो रही थी. आज मेरे फादर के मोबाइल फ़ोन के ऊपर हर गाड़ी के GPS लगे हुए हैं. मेरे भाई के हर मोबाइल फ़ोन के ऊपर GPS लगे हुए हैं. कौन सी गाड़ी कहाँ पे हिंदुस्तान में है, उनके मोबाइल पे ट्रैकिंग है. जैसी फास्ट टैग कहीं से निकलती है, उनके वहाँ से डिजिटली पेमेंट निकल जाती है. उनको पता गाड़ी क्या है. मेरा बेटा मेरा गाड़ी कहीं घुमाने ले जाए, अगर टोल से निकला तो उसको पता है, मेरे को पता वो कहाँ है. इतना ही नहीं, अगर हमको पता है तो टैक्स वाले को भी पता है. डिजिटाइजेशन इज फॉर्मलाइजेशन, हायर टैक्स कलेक्शंस. अब थोड़ी देर भाग सकते हो, छुप नहीं पाओगे. देखिए टर्न हो गया, आपको ध्यान है ना, डेवलपिंग नेशन डाउन एरा. देखिए ऊपर सारे एरो ऊपर चेंज हो गए. 50s, 60s, 70s, 80s. डेवलपिंग से हम आज भी एमर्जिंग कहलाते हैं, डेवलपिंग नेशंस कहलाते हैं. बट नंबर ऑफ पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, प्रोसेस मैं सब पढ़ूंगा नहीं, लेकिन दे आर व्हाट आर चेंजिंग. अब चीज़ें ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या सब्सिडी क्या दी. गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट साहिबा ने एक वर्ड यूज़ किया, टीच द पीपल टू फिश, डोंट फीड देम द फिश. मतलब उनको इतने सक्षम बना दो कि लोग अपनी कमाई खुद कर पाएं, स्वनिर्भर रहें. वही आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं. सिर्फ देश क्यों, हम होंगे तभी देश होगा ना. तो पॉलिसीज, प्रोजेक्ट्स, प्रोसेसेस, ये वर्ड्स हैं. कुछ कुछ चीज़ें हमने लिखी हुई है इसके अंदर, जो कुछ से 5, 10, 7 सालों में ही 5 साल हो गए GST को. कोई किसी के दिमाग में भी है
होगा नहीं, कैसे होगा, इनपुट आउटपुट ये वो, पर लिटरली जस्ट सी व्हाट एंट्रीज आर मेड. अभी आज समय नहीं, उतना मैं नहीं पढ़ रहा हूँ. एंड डिलीवरीज एंड बेनिफिट्स दिस हैज गॉन डाउन. 3 करोड़ आवास योजना, हम लोग को पता भी नहीं है. अगर आप एक्चुअली रूरल इंडिया में जाओ, आपको पता चलेगा जिनके घर मल्टी जनरेशन घर नहीं थे, उनको गवर्नमेंट के सपोर्ट से कितने घर बने. 3 करोड़ हैं. एंड इट इज गोइंग ऑन. सो दिस इज इंडिया. ये समरी है. कंजम्पशन ऑन, टिक. इट इज ऑन, इट इज गो ऑन. चेंजिंग यंग पॉपुलेशन, इनकम इंक्रीजिंग, कंजम्पशन इंक्रीज होगा. फाइनेंशियल सर्विसेज हम सबको पता है, टिक बॉक्स. एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी वीक, एक साइड बाद में कवर करूंगा. इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर. जो मेरे फैमिली वाले 30-20 साल पहले इंडिया से निकल के चले गए, 50 साल पहले, वो इंडिया आते हैं, उनको लगता है कि यार ये इंडिया हम छोड़ के गए थे. राइट. ये एक समरी है, लेकिन जो मैंने बोला वही है. फॉर्मलाइजेशन मैंने थोड़ी देर पहले बात की. जितनी फॉर्मल इकोनॉमी होगी, मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, उतने टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होंगे, उतनी ही हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है. डिजिटाइजेशन मैंने थोड़े कवर कर ही लिया. आज समय कम है तो मैं कम बात करता हूँ. इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है. अगेन इंपोर्ट पे वापस बात आ रही है. तो ये जो कन्वर्सेशन है, मैं थोड़ी सी इस स्लाइड के थ्रू आपके माध्यम से यूज़ करना चाह रहा हूँ. मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, इंडिया मिस्ड व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग. तो थोड़ी सी शर्म की बात भी है ना कि हम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरों को हम व्हाट्सएप तो कर देते हैं, अरे चाइना मेड मत लो, लेकिन मेरे को इंडिया तो बन ही रहा. अगर इंडिया में बना रहा है, मेरी क्वालिटी दो, आई विल पे फॉर द क्वालिटी. जो पैसा हमें बाहर के बना हुआ इंपोर्ट में देते हैं, हम क्या देंगे नहीं, हम खरीद ही रहे हैं, बट इंडिया बन ही नहीं रहा था. तो ये तो खाली एक एग्जाम्पल है. Now, somewhere government said there was an experiment done which is now known as a policy, PLI जिसको कहते हैं, production linked incentive. 1.5 साल 2 साल हो चले. So what they are saying is, जो import हम कर रहे हैं, can't we make in India? Government is giving incentives, same incentives in some other form, some other name would have been given by China someday. जब वो ग्रोथ कर रहे थे, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, इंडिया में प्रोडक्शन करो. प्रोडक्शन, हाँ, फैक्ट्री खड़ी करके सब्सिडी नहीं देने वाले हैं, प्रोडक्शन करो, उसके बाद मेरे से इंसेंटिव लो. दिस इंसेंटिव इज गोइंग टू पुश इंडिया. 15-16 सेक्टर में आ चुके हैं, मोबाइल फ़ोन, डिफेंस, केमिकल, फार्मा, एथेनॉल, टेक्सटाइल, 15-16 सेक्टर हो चुके हैं. एंड एक्चुअली दिस इज गोइंग टू पुश मैन्युफैक्चरिंग अप. इसके अंदर करीबन 2.25 लाख करोड़, करीब ऑलमोस्ट $30-40 billion ऑफ इंसेंटिव्स आर बिहाइंड दिस. And more than that, money will go into setting up capital expenditure. More employment, all round more employment, direct employment, indirect दोनों. More tax collections, better products, better quality, import substitution and possibly export also. जितनी bidding मोबाइल फोन्स की हुई है प्रोडक्शन के लिए, उतनी हमारी कंजम्पशन ही नहीं है. 2 व्हीलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पुणे में बैठा हूँ, ऑटो रिक्शा बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एक दिन वही बनती भी नहीं थी इंडिया में, और मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. तो आप, हम सब की इन्फॉर्मेशन के लिए, एप्पल के टैब्स इंडिया में बनने लग गए और इंडिया से एक्सपोर्ट होने लग गए. राइट. सिर्फ ज़रूरत क्या थी. और भाई अगर आपको नहीं पता, ये गरीब देश कहते हैं. वी आर दी लार्जेस्ट 1 और 2 नंबर इन टर्म्स ऑफ एप्पल, जो सबसे महंगा फ़ोन कहलाता है, सबसे ज़्यादा हम ही खरीदते हैं इंडियंस. वो पर कैपिटा इनकम आपको बताते हैं, वो बोलता है वो हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर वो कंट्री है. वो कंट्री जो हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर था, वो आज ना उसका तेल है, ना पानी है, और IMF से पैसा मांग रहा है. लेकिन हम वहीं पे हमारी ग्रोथ देखिए कहाँ हो रही है. तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से, विल दिस फिल द मैन्युफैक्चरिंग गैप? ये क्वेश्चन ओपन है. दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग एज आई टॉक टू यू. राइट. अभी समरी साइड जा रहा हूँ. आप जो शुरू के स्लाइड देख रहे हो, शुरू के आप देख रहे हो, ये पीच कलर के इंडिया था. इंडिया ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में 1000 साल पहले, 500 साल पहले क्या था? 16वीं 17वीं सदी तक वी वर अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, एंड देन वी वेंट डाउन. आपको पता क्यों? हम अधीन हो गए किसी के. वे कमिंग बैक. देखिए लास्ट में 2008 की बात है, $1 ट्रिलियन जब हुए थे, आज तो 3 हो गए. तो वी आर अबाउट व्हाट 3% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड नाउ. ये पुरानी बात है. अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं. फ्यूचर की बात करनी है आज, कल और कल तो रणधीर कपूर का था, उसके अंदर 3 ट्रिलियन हम हो गए हैं. राइट. 2-2.5 थे तो बोलते थे 5 होगा, 5 होगा. आप बिलीव करोगे 4 साल 4.5 साल पहले जब मैंने आके प्रेजेंटेशन किया था भारत की कहानी, हम 2 ट्रिलियन थे. 4 साल के बाद मैं आपसे बात करूँ 3 हो गए. अगर मेरे को जल्दी बुलाओगे तो मैं 4 भी जल्दी करा दूंगा. राइट. तो 5
होगा कि नहीं ये ड्रीम नहीं है, होना है, सिर्फ साल बदल सकते हैं। अभी वर्ल्ड बैंक, IMF है, वर्ल्ड बैंक ने आके बोला कि जो उन्होंने नंबर बोला था 1-1.5 साल पहले होगा, राइट। सेम थिंग वर्ल्ड, चाइना 1992 में जब इंडिया के रिफॉर्म हुए, चाइना 10 साल के रिफॉर्म्स के बाद में 10वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी बना था। 2008 जब इंडिया 1 ट्रिलियन का हुआ, चाइना 3 नंबर पे आ गया। तो इंडिया का कहते हैं आज जो हम 6-7 नंबर पे हैं, हम 3 नंबर पे चले जाएंगे अगले 8 साल में, 7 साल में। 2030 की बात हो रही है, साल आगे पीछे होगा। अगर आप लोगों ने इनकम कम करनी, अगर कम नहीं की, अगर आप लोगों ने कंजम्पशन कम नहीं की तो ये हो ही जाना है। अगेन सेम आंकड़े वर्ल्ड के हिसाब से कंपैरिजन दे रहा हूं। 2030 एस्टिमेटेड अबाउट 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन। अगले 7-8 सालों में जो हमारे 3 ट्रिलियन के हैं, 6-7 ट्रिलियन है। हर स्लाइड के पीछे एक लॉजिक है, आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर 3 ट्रिलियन के अंदर स्टॉक मार्केट का एक लेवल है, तो मैंने आपको पहले बेस दिया। 1 ट्रिलियन के अंदर स्टॉक मार्केट 20,000 की थी, 2 ट्रिलियन के अंदर स्टॉक मार्केट 40 की हुई, 3 ट्रिलियन के अंदर 60 भी दिखा दिया। ऊपर नीचे होगा वो तो नेचर है, वॉलेटाइल मार्केट है। तो 6 के क्या होगा, अपने मन में सोच लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, राइट। तो मेन बात क्या, अगर इकोनॉमी बढ़ रही है तो हाँ, मेरे को एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, अर्निंग सब हम समझते हैं, थोड़ी सरलता से आपके सामने रख रहा हूँ। अगर इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, क्या स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ेगी? अल्टीमेटली दैट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन कंपनीज। ये चाइना इंडिया है। तो फर्स्ट स्लाइड वापस यहाँ पे लेके आता हूँ। 50% जो भी प्लस माइनस जो होगा, चाइना इंडिया में वर्ल्ड मार्केट थी। क्या वो समय वापस आएगा? आपको लगता है वो साइकिल पूरा होगा? रे डैलियो भी बोल रहे हैं कि राइज, आपको वो रे डैलियो ने जो राइज ऑफ एम्पायर्स बोला है, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर बोला है, उसके अंदर कितने इंडिया में टिक बॉक्स हो रहे हैं? अगर आपको सहमति है 8 में से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 जितने हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये भी होना है, राइट। तो दिस इज व्हाट आई से। अगर आपको ये बर्ड पता है, दिस इज अ इमेजिनरी बर्ड, और कहते हैं एशेस से, दिस बर्ड राइजेस फ्रॉम द एशेस, फिनिक्स, राइट। हैरी पॉटर जिसने पढ़ी है, सुनी है, उसको तो पता होगा फिनिक्स किताब। सो फिनिक्स बर्ड, वो कहते हैं इट राइजेस फ्रॉम द एशेस, मतलब आप खत्म हो चुके हो, थक चुके हो, मर चुके हो, उसके बाद जब आप वापस उड़ते हो तो इट्स अ न्यू, यू आर मोर स्ट्रॉन्गर विद अ मोर विगर, मोर एनर्जी, एंड यू आर फास्टर। दैट इज व्हाट इज राइजिंग फ्रॉम द एशेस। विल इंडिया डू दैट? एंड वापस मैं रे डैलियो पे क्लोज करता हूँ। ये स्लाइड सिर्फ दिखाने के लिए नहीं थी, ये आपको सोचना है। यू आर अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटी हेल्थ, वेल्थ क्रिएशन होती है। वेल्थ क्रिएशन वर्ल्ड कहता है, वेल्थ क्रिएशन इक्विटी से हाईएस्ट होती है। एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ मानता हूँ, वो तो सिर्फ आपके एडवाइजर आपके साथ बैठ के दे सकता है। बट यू थिंक वी आर इन द राइस? इफ यू थिंक वी आर देयर, क्वेश्चन उल्टा कर दिया मैंने, आर वी इन द बिग साइकिल? हमारी आज लड़ाई हमारे साथ है। इट इज़ नॉट अ रैंकिंग, 6 नंबर 5 नंबर, कोई रैंकिंग का वैल्यू नहीं है। जब हम 100 पे थे, 10 में आए थे, बड़ा लगता था, 6 का 5। सो आर वी गोइंग टूवर्ड्स 3? इफ वी आर गोइंग टूवर्ड्स 3, यू हैव टू बी 6-7। इफ यू हैव टू 6-7, देन योर एब्सोल्यूट ग्रोथ इज देयर और नॉट, रिलेटिव कोई बात नहीं रही है अभी, राइट। सो इट इज ओपन क्वेश्चन, एंड दिस इज व्हाट आई विल से। अगर ग्रोथ है, समृद्धि है यानी कि प्रॉस्पेरिटी, विकास है यानी ग्रोथ, प्रोग्रेस, ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट जो हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, उसी को प्रदर्शित करती है, उसी को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये उम्मीद के साथ में कि आप इस भारत की ग्रोथ की, इस भारत के विकास की आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, अपनी वेल्थ ग्रो करोगे, इस उम्मीद के हिसाब से। और मैं वचनबद्ध हूँ कि अगले 8-10 साल मैं तो हिंदुस्तान के साथ हूँ इन्वेस्टेड। तो ये आपके ऊपर से बाकी छोड़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इट्स वेल, वंडरफुल अकाउंट इन द सेंस कि तीनों चीज़ें उन्होंने आधे घंटे में कवर कर ली। कपूर्स ऑल्सो नीडेड 2.5 hours। और दूसरी बात ये थी कि वंडरफुल अकाउंट इन द सेंस कि देखिए, हम लोगों को ही प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते रहते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कि इंडिया में कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। या लेट्स क्लैप फॉर द फेलिसिटेशन।